Hello everyone, welcome to today's episode of, you know, आज का टॉपिक है gratitude and surrender. So I'll just share my screen now. Yes. Let's start with the topic. But firstly, welcome everyone जिन्होंने टाइम निकाल के आज ये सेशन ज्वाइन किया है. सो जैसे ये हमने जो सीरीज शुरू किया है, ट्रांजिशन सीरीज, जिसमें एवरी डे वी स्पीक अबाउट अ न्यू टॉपिक. तो हमारा मेन इंटेंशन यही है, आप सबके लिए जो हमें ज्वाइन करते, फॉर ऑल द यूथ ज्वाइनिंग अस, कि हाउ डू वी गेट बेटर, how do we become better than what we already are. So we all want to become better, we all want new to develop new qualities. हमें बेहतर बेहतर बनना है हम जो है उससे. पर कभी कभी हमारी ही कोई ना कोई क्वालिटीज होती है जो हमें वो चीज पाने से रोकती है. तो मे बी हम कभी ज्यादा गौर नहीं करते. नॉलेज हम गेन तो करना चाहते हैं हर एक मीडियम से. ये 9 दिन में जो भी अलग अलग टॉपिक सीखे होंगे, वी वांट टू लर्न एवरीथिंग. बट द चैलेंज लाइज इन, क्या हम वो सब जो नॉलेज गेन कर रहे, आर वी अप्लाइंग एवरीथिंग एवरी डे. सो फॉर मेजोरिटी ऑफ पीपल द आंसर विल बी नो. सो एक रिक्वेस्ट यही है बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, कि जो भी हम रोज सीखते हैं, लेट अस स्टार्ट अप्लाइंग एवरीथिंग. तभी जाके जो हम नॉलेज गेन करते हैं उसका हमें बेनिफिट मिलेगा. तो आज का टॉपिक, लाइक एवरीवन नोज, इज ग्रैटिट्यूड एंड सरेंडर. सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक. यस. ये एक पैसेज है. आई वॉज रीडिंग दिस बुक कॉल्ड द सीक्रेट, जो सबको पता ही होगी. इट्स अ वेरी फेमस बुक. उसका जो द मैजिक पार्ट है उसमें से एक पैसेज है. सो द पैसेज सेज, whoever has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him. So इस पैसेज में there is one word that is missing. So the word here that is missing is is gratitude. So whoever has gratitude will be given more, and he will have an abundance. But whoever does not have gratitude, even what he has will be taken from him. So gratitude is a major part of our life. हम मे बी यू नो कॉन्शियसली या सब कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं. जब हमें कोई मदद करता है, या हम किसी की मदद करते, तो हम किसी को थैंक यू बोलते हैं या कोई हमें थैंक यू बोलता है. एंड वो चीज़ होके हम आगे वी कंटिन्यू विद आवर लाइफ. बट दैट इज नॉट व्हाट ग्रैटिट्यूड इज अबाउट. Gratitude is way more than what we think it is. So gratitude is basically a universal law that governs our entire life. So हमने ये बहुत सुना होगा, that whatever goes around comes around, and what you reap what you sow. So they are describing one single principle which says every action always has an equal reaction. सो बेसिकली जब हम ये ग्रैटिट्यूड का आइडिया अपने डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं, दैट इज व्हेन एवरीथिंग चेंजेस. So the more we have gratitude for what we already have, the more will be given to us. So the more gratitude we show, the more we will receive. But सिर्फ किसी कोई हमारी मदद करता है या हम किसी की मदद करते हैं, तो थैंक यू बोलने में इज नॉट व्हाट ग्रैटिट्यूड इज अबाउट. Gratitude is actually also about feeling gratefulness for every single thing that we have in our life. Right from waking up in the morning, right from being able to have a fan in our house, या right from being able to have breakfast, dinner, lunch. ये सभी के लिए जब हम ग्रेटफुल होते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए, तभी जाके we deserve to actually receive the abundance that this universe wants to give us. So उस बुक में ये भी लिखा है that if the only prayer we said in our entire life was thank you, then that would be enough. So that is the power of gratitude. So here's an activity. uh,
we want to achieve everything in our lives, correct? Right from if we are a student, then we want to achieve great results in academics. if we are if we are doing a job, then we want that career growth. तो हर एक स्टेज ऑफ लाइफ में देयर विल बी मैनी थिंग्स दैट वी विल वांट टू अचीव, बट आर वी क्लियर विथ रिगार्ड्स टू व्हाट वी वांट इन लाइफ? सो एक मेजर स्टेप लाइफ में कुछ अचीव करने का ये है दैट वी बिकम क्लियर with regards to what we actually want in life. So when we are clear with regards to that, तभी जाके we will be able to achieve what we want. तो यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट है which basically shows अलग 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 dimensions in our lives, right from health and body to career and love, money, relationships, personal desires, material things. So एक एक्टिविटी आज हम करेंगे. Before you all sleep, you can take a diary and a pen and write down you all can take a screenshot also इसका, and हर एक इन aspects में जो यहाँ पे दिया है, write down what is that you exactly want in life. If it's health, if you want to achieve a certain weight, body weight, so write that down ki this is the weight I want to achieve by this month next year. Money, so write down the specific amount of money that you wish to receive, or the personal desires or any material things that you want. And one thing I think is missing is spirituality. I don't know how I forgot that. That is the most important thing there. So write down what is that stage in spirituality that you want to achieve. So when you become exactly very specific with regards to everything you want, uske baad you have to write that down in a notebook, feeling ki all of these things you've already received. You have to write it in present tense ki thank you God, I've already received this. Thank you God, I have I have made this amount of money in 2025. Thank you God, my relationship with this person is very is going very smoothly. Thank you God, this is the car that I've purchased this year. So वो सब आपको डिटेल में लिखना and feel as if it's already there. तभी जाके whatever you want will be given to you. But one of the things I think जिसकी वजह से we are not able to achieve what we actually want to achieve in life is also our mental block. When we are actually writing down कि हमें क्या चाहिए, question yourself, do we actually believe that we deserve it? I think one of the things why we do not receive something is because of the mind block that we may not be deserving of that particular thing. So I think a very important step is to meditate regularly, continuously every day. And जब हम actually अपना vibration बढ़ाएंगे, only then we will actually realize कि हमें actual में life में क्या चाहिए. And only then that we will be able to deserve what we actually want in life. So very important part is also surrendering. Surrender plays a very important role in the journey of manifestation. So basically surrender means that you trust that whatever the divine has for you, you will get it at the right divine timing. The universe can only give you that which you believe you deserve. जैसे मैंने अभी बोला, we can only receive how much we think we deserve. If we think कि whatever I want, अंदर से माइंड ब्लॉक होगा कि अरे यार पता नहीं मिलेगा या नहीं, then obviously we may not be able to achieve that. So I think surrender is very very important. But I think surrender can only happen in the right way when we believe that जो भी हम चाहते हैं हमें शायद उससे भी अच्छा मिल सकता है. So that is when it actually happens. So I've actually listed down a couple of affirmations here. ये affirmations actually is from the book called You Can Heal Your Life by Louis L. Hay. So मैं अभी ये book read कर रही हूँ और उसमें से ये affirmations मुझे actual में बहुत interesting लगे. So the first says that everything I touch is a success. So these are basically हमारा जो ये mind block है वो हटाने के लिए और हमें actual में believe करवाने के लिए है that what we want can actually become our reality. So when we actually say these affirmations daily, तब जाके जो हमारा subconscious mind है that will actually change and it will become a reality. So the first says everything I touch is a success.
There is plenty for everyone, including me. I am a magnet for divine prosperity. I'm blessed beyond my fondest dreams. I'm willing to become a vessel for the universe to deliver me more than what my mind can conjure. So ये जो actually last वाला line है ना, last वाला affirmation, I'm willing to become a vessel for the universe. So what this actually states is that कभी कभी there's this trend of vision boards going on right now कि everyone right now is preparing a vision board. I'm not sure आप में से कितने लोगों ने already prepare किया होगा. But sometimes there is also this reality कि कभी कभी the only reason we may not achieve what we have in our vision board is because maybe the universe has planned something way beyond for us to achieve. So I think kabhi kabhi what we want, we obviously should be able to manifest it and should work for it. But this affirmation is also very important, which states that, you know, I am actually willing to become a vessel for the universe, which basically means कि universe, whatever I want, I know I deserve. But अगर इससे भी कुछ बड़ा है that you think I deserve, then I'm open to receive everything, in my life right now. So this is actually the main intention behind the last affirmation. So in fact, if there are any affirmations जो आप लोग रोज practice करते हो, you can mention it in the chat box as well. So no, this can actually help everyone. And I'd also recommend everyone to read this book called The Secret, 365 The Magic. उसमें 28 days के अलग 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 task दिए हुए हैं, जिसमें first day you have to do something with regards to a stone, जिसमें आप दिन में जो भी सबसे अच्छी बात हुई है that you tell to a stone, and every day you continue that activity. Yeah, it can be as simple as whenever you pay a check or you pay for a bill, you say thank you before giving that, and thank you to the divine that you're actually capable of actually paying that amount. The universe has made you capable to actually deserve what you're paying right now. So one of also my favorite affirmations is I am blessed beyond my fondest dreams. So ये सब every day when we say continuously, तब जाके we will actually be able to believe that whatever I'm saying is my reality right now. So ये सब बोलने से कुछ नहीं होगा. You actually have to feel it. A very very important part of our manifestation journey is that we feel everything, every single thing that we say, and only when we do it is when these things will become real for us. So I think I'll now be able, I'll now share a couple of my, personal, real life case studies so that you all can actually, be able to relate with what I'm saying right now. So मैं I'm 23 years old. मैंने मेरा बैचलर्स किया था 2 साल पहले, and it was COVID. I passed out in the year 2022. So बहुत बहुत challenges थे उस time पे, because we did not know what the future held for us. आगे जाके क्या करना है, कैसे होगा. I was like कि यार इसी साल में क्यों कोविड आना था. So बहुत सारे challenges हुए. But then that is when Paima came into my life. PSSM PMC Hindi came into my life. उसी टाइम पे मैंने JTTP1 ज्वाइन किया था, एंड देन ऑल द क्वेश्चंस दैट आई हैड मैंने सब लेट गो किया, and the only thing I told myself every single day was one of these affirmations: universe, I know there is plenty for everyone, including me. Universe, everything I touch is a success. Universe, can you please show me my next steps and the direction of my life ahead? So every day I used to repeat these affirmations to myself, and in my head, after a point, starting में तो I just felt कि मैं बस read करने के लिए read कर रही हूँ. But after a certain point, I actually started believing everything I said. And uske baad is when the transformation in my life happened. PSSM came into my life, meditation entered my life, and uske baad whatever I wanted, everything started falling in the right place. So I think a very very important part is also to be able open to receive everything that the universe wants to help us with.
वी डोंट रियलाइज दिस, बट एट दिस प्रेजेंट मोमेंट ऑल्सो हमारे साथ कितने सारे एंजल्स, मास्टर्स, सब लोग हमारे आसपास है हु आर विलिंग टू हेल्प अस. But maybe we are not realizing that. The only reason is that because we are very very involved in our own life, in our own thoughts, because of which we are not actually able to understand the help that they are wanting to give us. So the only way we can actually receive that help is through meditating daily, firstly, repeating these affirmations and being happy. Like, we have to be happy with what we already have in life. Like, how many of us are happy every single minute of the day? Of course, life में challenges आते हैं. We may not be able to be very very joyful and happy every single minute of every day, but in our heart I think there should be gratefulness for everything sorry, that we already have. And only then we can ask the universe for more or something else that we want in life. So right now probably maybe one of you all can share your experiences of gratitude. अगर आप में से कोई gratitude daily practice करता है तो y'all can let me know कि क्या changes आए हैं आपकी life में, या any one difficult period of your life just that you've gone through, but gratitude and surrender has really helped you. आई थिंक मैंने सरेंडर के बारे में ज़्यादा नहीं बोला, बट आई थिंक सरेंडर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Every time we want something, we have to realize that it will be given to us, but it will only be given to us if it is in the best of our अपने, अगर वो अपने हित में है, अगर वो मिलने से सिर्फ अगर अपना सही में भला होने वाला है, तभी that will be given to us. So I think every day we should make it a habit, to talk to the divine, the universe, or whichever God we believe in. Universe, give to me exactly what you think is right for me, and I surrender to you at this very moment. And I trust that जो भी मेरी life में आगे होगा, that will be the best for my highest and for my highest most benefit. So any suggestions or any new any new affirmations that you all will like to add, या अपना journey gratitude का if you want to share, please feel free to share. Anyone? No. So maybe then we can probably start with meditation, and then end में we'll also again discuss about this topic, and if you all have any questions with regards to anything. So अभी हम सब आंखें बंद करके लेग्स फोल्ड करके मेडिटेशन पोजीशन में बैठ जाएंगे, एंड मैं एक मेडिटेशन म्यूजिक लगाऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द म्यूजिक. लेट्स क्लोज आवर आईज, क्लैस्प आवर फिंगर्स and relax position में. Let's all begin the meditation today.
धीरे धीरे हम मेडिटेशन से बाहर आएंगे. ओपन योर आईज. एंड अगर किसी को कंटिन्यू करना है तो यू ऑल कैन कंटिन्यू. बाकी लोग इफ यू ऑल कैन स्विच ऑन योर कैमरास. सो अब हम एक्सपीरियंस शेयरिंग करेंगे रिगार्डिंग द टॉपिक या मेडिटेशन या इन जनरल. अगर इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू ऑल वांट टू शेयर, द स्टेज इज ओपन. सो जैसे आज का हमारा टॉपिक था gratitude and surrender. So in case if anyone wants to share their experience, अगर कोई already follow करता है all the routine, yeah, in general if you're a meditator, कोई questions है तो feel free to ask right now. Yes, anyone would like to share?
Mm. Deepa, would you like to share your experience about gratitude? Yes, guys, sharing is caring. If you all will share your experience, तो बाकी सबको motivation मिलेगा and they'll get to learn something. Yes, Pooja, I've asked you to unmute. You can unmute yourself and share your experience. अ, बहुत अच्छा मेडिटेशन था। बहुत ध्यान बहुत अच्छा लगा, कहीं इधर-उधर भी नहीं जैसे होता है वो नहीं, बहुत अच्छा था। Mm-hmm. लेकिन मेरे को मेरा एक क्वेश्चन था या ऐसे डाउट बोल सकते हैं कि जैसे आपने सरेंडर बहुत अच्छा टॉपिक है। सरेंडर करना ये कई बार ना ऐसे लगता है कि हाइपोथेटिकल है चीज़ें। ऐसे लगता है कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद की ही है। खुद खुद ही हम सब करेंगे। मुझे हाइपोथेटिकल सा लगता है ये सरेंडर करना। बहुत बोलते हैं लोग और बहुत एक्सपीरियंस भी हुए हैं, मेरा खुद का भी हुआ है। लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि ऐसा लगता है कि नहीं हम ही सँभाल सकते हैं, कुछ ऐसे सरेंडर ऐसा कुछ होता नहीं है। Okay, so if I'm understanding your question right, आपका ये मतलब है कि you believe that you are the creator of your reality. So इसीलिए जब when it comes to surrender, you're not able to do that because आपको एग्ज़ैक्टली। लगता है कि we are the controller of our destiny. हुँ, Okay, so obviously, see, we are the controller of our destiny. हम जो भी चाहते हैं, we will be able to manifest. Like I said in the topic also. But surrender कब आता है? When you actually believe कि जो तुम चाहते हो तुम्हें मिलेगा. But उसके बाद बहुत बार क्या होता है ना कि resistance होता है कि नहीं मुझे ये चीज़ ऐसे ही होनी चाहिए, वो चीज़ वैसे ही होनी चाहिए. तो अंदर एक वो चीज़ हो जाती है after you've written your manifestations या you've worked hard. तो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि तुम बहुत उस चीज से लगाव करके बैठते हो कि ऐसे ही होना चाहिए वैसे ही होना चाहिए सो तभी इज व्हेन लेट गो या सरेंडर कम्स इनटू द पिक्चर आपने जब अपना 100% दे दिया है उसके बाद योर ओनली लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू प्रे टू द यूनिवर्स और द डिवाइन और विच एवर एनर्जी यू बिलीव इन एंड टेल देम कि मैंने मेरा बेस्ट दे दिया है अब whatever happens the way it happens that I do not want to control I surrender to that and I believe कि जिस भी वे में मैंने जो मांगा है वो होगा वो मुझे एक्सेप्टेबल होगा सो सरेंडर डज नॉट मीन कि तुम बिना मेहनत किए जो भी है तुम बस भगवान पे या डिवाइन एनर्जी पे छोड़ दो कि मुझे ये चाहिए मुझे ये दे दो ऐसा उसका मतलब नहीं है सरेंडर का यही मतलब है कि वॉट एवर यू आस्ड फॉर यू गिवन योर बेस्ट टू अचीव इट यू नो इट विल हैपन बट जिस तरीके से होगा द वे यू वॉन्टेड टू हैपन यू डू नॉट कंट्रोल दैट कंट्रोल यू गिवन टू द यूनिवर्स कि जो जिस भी वे में होगा जो मेरे लिए बेस्ट होगा उसी वे में मुझे ये करके दो एंड मुझे उस मैनिफेस्टेशन से कोई अटैचमेंट नहीं है become detached once you worked hard for what you want become detached and then let it go just trust कि तुमने मेहनत किया है तो तुम्हें वो मिलेगा ही so that is like the concept of surrender here so यहाँ पे you are definitely working hard for what you want you are the creator but you are not controlling the way it should happen and when it should happen that you've left it to the divine because see ये तुम्हें अगर बिलीव करने में डिफिकल्टी होता है ना तो बस एक इतना ही थॉट सोचो कि इतना बड़ा यूनिवर्स है देर आर सो मेनी यूनिवर्सेस देर आर सो मेनी डायमेंशंस इन द यूनिवर्स आर यू द कंट्रोलर ऑफ इट यस और नो नो। राइट सो देर विल बी अ सर्टेन एनर्जी राइट जो ये सारे प्लैनेट्स को ये सारे डिमेंशंस को होल्ड किए हुए है देर विल बी एन एनर्जी राइट जो ये सब कुछ चला रहा है द वन हु इज गाइडिंग एवरीथिंग यू नो सो वही एनर्जी से वी आर मेड अप ऑफ दैट एनर्जी विच इज वाई वी आर कॉल्ड द क्रिएटर्स बट देन देर इज एन एनर्जी दैट इज हायर देन अस जो ये सब गवर्न कर रहा है तो ऑब्वियसली अगर वो ये सब कुछ पूरा एंटायर यूनिवर्स पूरा एंटायर प्लैनेट गवर्न कर सकता है सबको अपने अपने पोजीशन पे स्थिर रख सकता है तो वी हैव टू बिलीव दैट हमें जो चाहिए वो हमें मिलेगा बट देर इज दिस हायर पावर दैट इज देयर विच इज बियॉन्ड अस जो हमारी मदद करेगा हमेशा विच वी कॉल डिवाइन इंटरवेंशन
एंड उसी को हमें सरेंडर करना है कि द वे इट शुड हैपन, व्हेन इट शुड हैपन, एंड इफ दैट इज बेस्ट फॉर अस और नॉट, वो ज्यादा जानता है. बिकॉज हमारा माइंड इज वेरी लिमिटेड, द ह्यूमन माइंड, वॉट वी वॉन्ट फॉर आर सेल्स, वी कैन ओनली थिंक अप टू अ लिमिटेड थिंग, बिकॉज अपना ह्यूमन माइंड इज वेरी लिमिटेड. बट जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, दैट इज वेरी वास्ट, वेरी वेरी वास्ट. सो हम जो सोच भी नहीं सकते ना, उतनी अच्छी अच्छी चीजें वो हमारे लाइफ में कर सकता है. सो वो एक बिलीव हमें अंदर होना चाहिए कि वो मेरे साथ भी वैसा होगा. तो उसे सरेंडर बोलते हैं और उसे ट्रस्ट बोलते हैं. सो आई एम नॉट श्योर इफ आई एम एबल टू लाइक आंसर 100% नहीं, आपको जो बिल्कुल चाहिए, सही बट है। आई एम. पॉजिटिव पॉजिटिव थिंकिंग के साथ भी हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। डेफिनेटली पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव ही होगा. एंड वी जस्ट हैव टू ट्रस्ट इन दैट इनविजिबल एनर्जी जो ये पूरे यूनिवर्स को गवर्न कर रहा है, वो हमारा भी ध्यान रख रहा है. तो जब हम अपना रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं, दैट एनर्जी इज ऑल्सो देयर विथ अस, सपोर्टिंग अस एंड हेल्पिंग अस टू क्रिएट दैट रियलिटी, विच इज वाई वी हैव टू ट्रस्ट दैट एनर्जी एंड समटाइम्स लेट इट गो एंड सरेंडर कि जो भी हम चाहते हैं वो हमें राइट टाइम पे राइट वे में जरूर मिलेगा. जी, थैंक यू एनी सो मच। अदर क्वेश्चंस? आपको कोई और क्वेश्चन है पूजा? इफ नॉट आई नहीं, थिंक. थैंक यू सो मच, थैंक यू। नो वरीज. यस दीपा. I've asked you to unmute, but I think हो रहा है कि नहीं पता नहीं. Yeah, I think अब हुआ. Yes, anyone? Deepa, would you like to share anything? Siddhartha, would you can you please switch on your camera and if you want to share anything, your experience, आपका first ever experience था. So if you would like to share everything, with others, उनको भी थोड़ा motivation आएगा सबको. Hi Surabhi, it's Shubham here. Hi Shubham. Hi. Gratitude is like one of the favorite topic मेरे लिए. Hmm. जो भी आपने book suggest की, that books are also like very helpful for gratitude, because हम बहुत सारी चीजों के लिए grateful होते ही नहीं है. Hmm. यानी सबकॉन्शियसली बचपन से ऐसा होता है हमारा माइंडसेट कि हम बहुत सारी चीजों के लिए कंप्लेंट ही करते हैं, ग्रेटफुल नहीं रहते. तो लाइक दैट वी गॉट द रिजल्ट इन आवर लाइफ. बट लाइक आपने जैसे बताया कि इन द मॉर्निंग जब भी हम उठने के बाद वी शुड बी ग्रेटफुल टू यूनिवर्स एंड वॉट एवर थिंग्स वी हैव. सो आई थिंक सो दैट आई एम अप्लाइंग इट, और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स ऑब्वियसली आते हैं, बिकॉज हम कुछ एक अलग फ्रीक्वेंसी में खुद को लेके जाते हैं. सो True. प्रेजेंटेशन वाज वेरी गुड अबाउट दैट, एंड मेडिटेशन भी बहुत अच्छा था. थैंक यू Definitely. वेरी मच. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस. इनफैक्ट वो जो मैंने एफर्मेशंस भी दिए थे ना, दैट इज फ्रॉम द बुक कॉल यू कैन हील योर लाइफ. सो आई थिंक दोज एफर्मेशंस आर ऑल्सो वेरी वेरी हेल्पफुल. लाइक मैंने उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया, बट दे आर एक्चुअली हेल्पफुल. इफ विद अ क्लियर माइंड विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस अगर हम वो सारे एफर्मेशंस एवरी डे फील करके बोलते हैं ना, द रिजल्ट्स विल बी आउट ऑफ द वर्ल्ड. लाइक हम सोच भी नहीं सकते ना, वो सब हमारे लाइफ में उतना अच्छा अच्छा होने लगेगा. बिकॉज लाइक आई सेड राइट नाउ, द ह्यूमन माइंड इज़ वेरी लिमिटेड. सो हमें हमारा पर्सपेक्टिव जो होता है कि ये चीज़ अच्छी है मेरे लिए या मुझे वो अचीव करना है, वो अपने ह्यूमन माइंड के हिसाब से थोड़ा लिमिटेड होता है. तो जब हम ये सारे एफर्मेशंस बोलने लगेंगे ना, तो हमारा जो ये जो वेसल बोलते हैं ना हम, द वेसल ऑफ द यूनिवर्स, तो जो यूनिवर्स जब एक्चुअल में हमें देता है ना, सो दैट विल बी वेरी वेरी bigger and higher than what we think we deserve. So those affirmations are just a simple way to actually open up our subconscious mind and actually believe that the biggest things that we want in life are possible for us and we deserve it. So I think affirmations are also equally very 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 important along with gratitude. Yes. Yeah, Deepa.
हेलो एवरीवन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुभी को थैंक यू कहूंगी क्योंकि आज उनका फर्स्ट सेशन है एलकेडी में। और बिल्कुल लगा नहीं कि फर्स्ट डे है उनका लिटरली। और जितने लोग भी यहाँ पे हैं मैं उनको वेलकम करती हूँ लोक कल्याण ध्यान में। सो एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अपना कंफर्ट जोन तोड़ के बाहर नहीं आएंगे तो नोबडी आपको कोई भी धक्का नहीं देगा। तो रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट टाइम से आप लोग शेयर करो, क्योंकि जब आप शेयर करते हो ना तो आपके जो थॉट होते हैं ना वो और क्लियर होते हैं। उससे ओवर थिंकिंग नहीं होती। इसीलिए कहते हैं शेयरिंग इज केयरिंग, फर्स्ट योर सेल्फ देन अदर। तो मेरा ग्रैटिट्यूड से तो बहुत ज्यादा कनेक्शन है। ग्रैटिट्यूड लाइक हेवन फॉर मी, क्योंकि ग्रैटिट्यूड ने मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें चेंज की हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइफ में कोई भी चैलेंज आता है ना, तो वो इतनी ब्लेसिंग्स मिलती है मुझे उस टाइम पे कि वो चैलेंज भी कहता है ओ भाई अब यहाँ नहीं आना है। तो लाइक वो लर्निंग होती है, मैं ले लेती हूँ, खुशी से एक्सेप्ट करती हूँ, उसको भगाती नहीं हूँ। मेरे को ना अभी पूजा ने जो क्वेश्चन किया था उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल आया है। हालांकि वो काफी फनी है बट मैं तब भी शेयर करूंगी। वो एग्जाम्पल ऐसे है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बेस्ट फ्रेंड है, उसने गुस्सा किया, ठीक है, तो गुस्से में आके गुस्सा करा उसने, और आप उससे मना रहे हो कि भाई शांत हो जा शांत हो जा। अब बार बार वो और गुस्सा करेगा, वो बहुत चिल्लाएगा। अगर आप उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे, आप बोलोगे चलो अभी इसका गुस्सा शांत हो जाएगा उसके बाद बात करेंगे, तो एग्जैक्टली वैसे ही होता है कि जब हम यूनिवर्स पे कोई भी विश छोड़ते हैं, फिर भी हमें ट्रस्ट है कि भाई दोस्त तो वापस आएगा ही, चाहे 1 घंटा चाहे 2 घंटा चाहे 3 घंटा। तो ऐसी कोई विश अगर हम मैनिफेस्ट करते हैं ना तो उसे छोड़ना होता है। जब तक उसे हम पकड़ के रखेंगे ना, वो हमारे पास नहीं आएगा। जब हम उसे छोड़ दें, हम अपने बेस्ट फ्रेंड को छोड़ देते हैं ना, तो 1-2 घंटे बाद उसको अकल ठिकाने आ जाती है, तो वो वापस आता है कि भाई जाएंगे कहाँ। तो ट्रस्ट ऐसी होता है कि जब कोई चीज मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो हमको ना उसको छोड़ना होता है। जब यूनिवर्स को दे देते हैं तो बाद में वो चीज हमें आती है, और बेस्ट वे में आती है। जैसा हम नहीं सोचे रहते उससे भी ज्यादा बेस्ट वे में आती है। बट बात वो होती है कि हमको जब चाहिए होता है तब तब टाइम लग जाता है, तो एक्साइटमेंट कम हो जाता है। तो उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड देना चाहिए। आप लोग के लिए टास्क है, जो टास्क एक बार हम लोगों के टाइम पे महेश भैया ने दिया था हमको। आप बता सकते हो आपकी लाइफ में कौन सा ऐसा पर्सन है जो आप उसको कुछ भी बोल दो, आप उसको कुछ भी कर दो, वो तब भी आपको प्यार से सर्व करता है सब कुछ। बता सकते हैं कौन है? ऐसा परिवार में कौन पर्सन है रिटर्न में उसको कुछ चीज मिलता नहीं है, मतलब काफी घरों में नहीं मिलता है उसको रिटर्न में, उनको रिटर्न में नहीं मिलता है कुछ, बट वो बदले में प्यार ही देती हैं। तो ये कौन हो सकता है? फटाफट मदर। कमेंट करिए। कौन? मदर, माँ। राइट, मदर। मदर देती हमको बहुत कुछ है, पर रिटर्न में कुछ नहीं। एक दिन खाना अगर थोड़ा नमक तेज हो गया तो बहुत तेज आवाज आएगी, आज बहुत नमक है इसमें। पर जिस दिन खाना अच्छा बन गया उसके लिए कुछ नहीं बोलते हैं। तो गाइज ये टास्क है, चाहे कैसा भी आप ऑकवर्ड फील करो या कुछ भी। मुझे पता है इंडियन घर में ऐसा बोला नहीं जाता क्योंकि हैबिट नहीं होते, बट ये हैबिट आपको इनबिल्ड करनी पड़ेगी। आपकी लाइफ में जितनी भी फीमेल्स हैं उनको आप ग्रैटिट्यूड देंगे, आज से शुरू करेंगे, क्योंकि उनको कोई अप्रिशिएट नहीं करता है। मैं मैंने जब ये ग्रैटिट्यूड और ये थैंकफुल वाला अपने लाइफ में जाना कि ये कितना इम्पोर्टेंट होता है ना, मैं अपने मदर को हर एक चीज के लिए ग्रैटिट्यूड देती हूँ। उन्हें मैं बोलती हूँ कि थैंक यू, तो उनके चेहरे पे जो स्माइल आती है ना, वो मतलब लाइक ए हेवन। तो आप ये अपने लाइफ में इनबिल्ड कर लीजिए कि आपके घर में जो आपके लिए खाना बनाती हैं, आपके मदर सिस्टर जो भी फीमेल है ना, उनको ग्रैटिट्यूड दीजिए। उन्हें दो शब्द ही काफी होते हैं उनके जिंदगी में सुकून के। तो आज कितने लोग रेडी हैं भाई ये टास्क करने के लिए? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, यस। कितने लोग करने वाले हैं आज? और कोई नहीं करेगा यहाँ पे? कोई बात नहीं, इसके लिए भी मैं ग्रेटिट्यूड देती हूँ आप लोगों को।
तो ग्रैटिट्यूड लाइफ में आपके हिडल्स को बहुत ज्यादा वो कर देता है। लाइफ में ना जो चीजें हैं उसको ग्रैटिट्यूड में डबल हो जाती हैं। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। तो जैसे यहाँ पे जितने लोग हैं ना, मैं उन लोगों को ग्रैटिट्यूड देती हूँ, तो नेक्स्ट टाइम जब मेरा सेशन होगा ना, इससे डबल लोग आएंगे। तो गाइस, मदर को आप ग्रैटिट्यूड दीजिए, और चाहे कैसा भी खाना बना हो, आप उसे एक्सेप्ट करके खाइए। और संडे या सैटरडे हो तो अपनी मदर को भी खाना खिलाइए बना के। तो ये हैबिट रखिए और जिंदगी आपकी एकदम मजेदार हो जाएगी और हमेशा मस्त रहिए। और थैंक यू सुरभि, बहुत ज्यादा अच्छा सेशन था। तो गाइस, शेयरिंग इज केयरिंग, ग्रुप में आप शेयर कर सकते हो। तो ओवर टू यू सुरभि। थैंक यू। थैंक यू दीपा फॉर योर वंडरफुल एक्सपीरियंस। आई थिंक आज भी हमने सुबह बात की थी ग्रैटिट्यूड के बारे में एंड हाउ इट हैज चेंज्ड योर लाइफ. सो आई थिंक दैट इज ऑफ कोर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड या आई थिंक दैट इज इट फ्रॉम माय एंड. यू नो आई थिंक टाइम भी हो गया, बट इन केस बाकी किसी को कुछ शेयर करना हो तो प्लीज़ फील फ्री. आई बी मोर देन हैप्पी यू नो सबसे बात करके. सो अगर किसी को कुछ शेयरिंग या यू नो डाउट नहीं है तो मे बी वी कैन एंड द सेशन हियर. एंड देन कल सेम टाइम पे मिलेंगे विद अ न्यू होस्ट एंड अ न्यू टॉपिक. यू नो टुमारो 9 to 10. And I think you know please join tomorrow. It's the 31st you know the last day of the year. But I think मेरा एक ही मैसेज होगा कि ये जो लास्ट फ्यू डेज होते हैं एवरी ईयर के, या जो स्टार्टिंग फ्यू डेज होते हैं न्यू ईयर के, आई थिंक we should spend it in utmost awareness with regards to हमने ये साल में क्या किया है, what we think you know we did correctly, what is it that we are grateful for, क्या वो चीज़ें हैं जो हम चेंज कर सकते, समथिंग यू नो वेर वी प्रोक्रेस्टिनेटेड, या कहीं हमारी गलती थी, वी डिडंट डू एज मच एज वी वर एक्सपेक्टेड टू डू. And secondly, you know in the new year when you start, write down what you want you know in your life. And you know just be grateful for everything you have. you know I think uh, हमें हमेशा ह्यूमन माइंड हमारा टेंडेंसी होता है कि वॉट एवर वीव गॉटन इन लाइफ वी मे नॉट बी यू नो वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ इट, और मे बी हमें यही लगेगा कि यार हमारे पास कुछ है तो हम किसी और को देखेंगे कि अरे उसके पास ये है, और वो इंसान किसी और को देखेगा बोलेगा उसके पास अरे उसके पास इतना अच्छा है. सो आई थिंक देर इज नो एंड टू एनीथिंग इन लाइफ. आई थिंक ये जो सर्कल, ये जो लूप है ना, वो हमेशा चलता रहेगा. किसी ना किसी के पास अपने से ज़्यादा कोई भी एंगल में होगा ही, बट देर विल ऑल्सो बी पीपल जिसके पास हमें जो मिला है वो तक नहीं है. सो आई थिंक इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग ऑन इन दैट लूप एक के बाद एक, कि मुझे अब ये चाहिए उसके बाद ये चाहिए, आई थिंक जस्ट बी अवेयर कि वॉट यू हैव गॉटन इन योर लाइफ, बी ग्रेटफुल फॉर यू नो वॉट यू हैव, एटलीस्ट उतना मिला है तुम्हें. And at the same time work on your goals. But I think the one most important part is spirituality. I think apart from all of these things ki mujhe you know material things या possessions, the most important thing is your spiritual journey. Because we are not this body, we are souls, we are here on this human, we are here on a human journey. So I think अगर कुछ चीज़ तुम्हें अचीव करना है लाइफ में, so that should be you know the highest spiritual you know position in life. कि तुम जितना जितना ज़्यादा तुम spirituality में grow करोगे, that will be your real success. Possessions and everything, that is great, you know you will achieve it, no doubt. but जितना तुम spirituality में आगे बढ़ोगे, ये सब material possessions तो तुम्हें life में मिलेंगे ही, no doubt about that. but the most important thing is your spiritual journey and how ahead you are going in that. So I think you know with this one last message I would like to you know end today's session. And by you know be happy, be grateful, keep meditating, and yeah, we'll meet tomorrow for the next session. Thank you so much, and I think I'll end the meet now.